Hello, my dear students, how are you? I'm sure that you must be preparing well for your competitive examination. तो आओ शुरू करते हैं हाई यील्ड पॉइंट्स सीरीज का आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है वेक्टर्स. Now what are vectors? You know that vectors are the quantities which have magnitude as well as direction. For example, displacement, velocity, force, impulse, momentum, etc. are vector quantities. Now addition of vectors. Vectors cannot be added algebraically. They can be added according to certain laws which are known as the laws of vector addition, and these laws are triangle law of vectors, parallelogram law of vectors, polygon law of vectors. Now let us study parallelogram law of vectors. This law states that if two vectors acting simultaneously on a particle can be represented in magnitude as well as direction by the two adjacent sides of a parallelogram passing through a point, then their resultant is represented in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point through which the vectors, two given vectors pass. And in the vector form, we can write r vector equal to p vector plus q vector. And the magnitude of r is, that means r mod equal to mod p plus q. And it can be written as r equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta, where theta is the angle between the given vectors p and q. And if beta is the angle which the resultant vector makes with the direction of the vector p. Please note this, ये जो मैं फार्मूला आपको एंगल के लिए बताने लगा हूँ, ये फार्मूला तब लगाना है जब वेक्टर p के साथ एंगल बीटा हो, और अगर ऐसा है देन टेंजेंट बीटा इक्वल टू q साइन थीटा ओवर p प्लस q कॉस थीटा. अब इसमें फिर मैं आप एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो बीटा एंगल हम निकालेंगे ये फार्मूला लगा के, that will be the angle which the resultant makes with the direction of the vector p. अगर डायरेक्ट वेक्टर q के साथ निकालना है तो या तो ऐसा करो, टोटल एंगल थीटा है उसमें से बीटा माइनस कर दो, या फिर वो फार्मूला बन जाएगा, ऊपर आएगा p साइन थीटा ओवर q प्लस पी कॉस थीटा. लेकिन आप याद रखो हम p के साथ ही जनरली एंगल लेते हैं, तो टेंजेंट बीटा इक्वल टू क्यू साइन थीटा ओवर पी प्लस क्यू साइन कॉस थीटा. अब दो वेक्टर्स का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है वो उनकी मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो सकता है, और ये कब होता है, जब उन दोनों में एंगल 0 डिग्री हो. दैट मीन्स व्हेन द टू गिवन वेक्टर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन. और दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की मिनिमम होती मैग्नीट्यूड उनके डिफरेंस के बराबर. That means R minimum equal to either P minus Q or Q minus P. If P is greater than Q, then P minus Q, and if Q is greater than P, then Q minus P. और जो एंगल है ये उनमें होना चाहिए 180 डिग्री. दैट मीन्स द टू वेक्टर्स शुड एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस. और अगर दोनों गिवन वेक्टर जो P और Q हैं उनमें एंगल 90 डिग्री, then the magnitude of the resultant is under root of p square plus q square and tangent beta equal to q by p. अब triangle of vectors, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि if three vectors acting simultaneously on a particle can be represented in magnitude as well as direction by the three sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is 0. तो मान लो तीन वेक्टर हैं a, b और c, and they can be represented in magnitude as well as direction by the three sides of a triangle taken in the same vector, और इनका रिजल्टेंट 0 होगा. और वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0. अब इसका कन्वर्स भी ठीक होता है, और कन्वर्स क्या है कि अगर तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 हो विच आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, देन दोज थ्री वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर. इसी तरह पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इफ़ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स से ए बी सी डी एंड ई acting simultaneously on a particle can be represented in magnitude as well as direction by the sides of a closed polygon taken in the same order,
then their resultant will be 0. That is, sum of all these vectors will be 0. That means a plus b plus c plus d plus e equal to 0. And the converse of this statement is also true. That is, if the resultant of a number of vectors acting simultaneously on a particle is 0, then these vectors can be represented in magnitude as well as direction by the sides of a closed polygon taken in the same order. Now we come to subtraction of vectors. मान लो हम वेक्टर Q को वेक्टर P से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और ऐसा करने पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो R आता है. Then in the vector form I can write vector R equal to vector P minus vector Q, and subtracting vector Q from vector P means adding vector minus Q from vector P. That is, P minus Q means P plus minus Q. और अगर P और Q में एंगल है थीटा तो P और माइनस Q में हो जाएगा 180 माइनस थीटा. बाकी इसकी R की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम लॉ में बताया. फ़र्क यह है कि वहाँ पे हमें थीटा की जगह कितना करना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा. देन रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2-3, कि मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स whose resultant can be 0 is 2. Minimum number of collinear means which act along the same line. तो ये तब दो चाहिए जब उन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो. अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो फिर दो वेक्टर्स का बेशक वो कोलिनियर हो, रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता. और जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें तो उनका रिजल्टेंट आएगा 0. देन द मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0 इज 3. अगर एक प्लेन में लाई करते हैं तो अगर कोलिनियर हैं तो कम से कम 2 चाहिए, अगर एक प्लेन में लाई करते हैं तो कम से कम 3 चाहिए. एंड these 3 vectors should be such that they can be represented in magnitude as well as direction by the 3 sides of a triangle taken in the same order. और अगर ऐसा हो तो जैसे अभी मैंने आपको ट्राइंगल लॉ में बताया था कि उन तीनों का रिजल्टेंट आएगा 0. Then the minimum number of non-coplanar vectors whose resultant can be 0 is 4. इसमें क्या होगा कि 2 वेक्टर एक प्लेन में होंगे, 2 वेक्टर दूसरे प्लेन में होंगे. जो एक प्लेन में है उनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट. जो दूसरे प्लेन में है उनकी भी मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अपोजिट. तो दोनों पेयर्स का रिजल्टेंट आ गया 0. तो चारों का भी रिजल्टेंट कितना बन गया, 0. देन आपको पता है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो. नाउ a unit vector in the direction of a vector A is written as cap A. ये ऐसे करके A लिख के ऊपर इस ऐसे कैप इसको बोलते हैं या हैट बोलते हैं या कैरेट कह देते हैं. तो A कैप और हैट A और कैरेट A means unit vector in the direction of vector A. And remember, any vector can be written as the product of the magnitude of that vector. जैसे वेक्टर ए है, इट इज़ इक्वल टू, ये जो बिना एरो के लिखा मैंने, दिस मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए. तो यहाँ से अगर वो हमें कहे कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो हम लिखेंगे ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो अगर हमें वेक्टर ए पता है, मैग्नीट्यूड उसकी पता है, निकाल सकते हैं हम, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. Then remember, a unit vector has no units and is dimensionless. ना तो इसके यूनिट होते हैं ना इसकी कोई डायमेंशंस होती हैं. इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली. ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब आ जाओ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. आपको पता है कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. यानी कि अगर 2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों देन दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. अब यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मीन्स द वेक्टर्स which have magnitude equal to 1 and are perpendicular to each other, and they are represented by I cap along x-axis, j cap
along y axis and k cap along z axis। इसका मतलब i कैप की मैग्नीट्यूड भी 1, j कैप की मैग्नीट्यूड भी 1, k कैप की मैग्नीट्यूड भी 1। और इन तीनों में से जैसे i और j में एंगल 90, j और k में एंगल 90, k और i में 90। और क्योंकि ऐसे दो वेक्टर जिनमें एंगल 90 डिग्री हो, दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, इसलिए आई कैप, जे कैप, के कैप को हम बोलते हैं यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि देर आर 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो पहली है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब कि पहले हमने ये ब्रैकेट में जो डाले हैं b और c, इनको ऐड करना है, जो आ जाए उसको फिर a में ऐड करना है। लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, यानी कि पहले मैं a और b को ऐड कर लूँ और उसके बाद जो जवाब आ जाए उसको मैं c उसमें ऐड कर दूँ, तो इसको बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। दैट मीन्स द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। देन it is distributive. Now what is the meaning of distributive? Suppose n is a scalar, then n into vector a plus vector b equal to na plus nb। इसका मतलब चाहे आप पहले a और b को ऐड कर लो फिर उसको n से मल्टीप्लाई कर लो, या पहले a को n से भी मल्टीप्लाई कर लो, b को भी n से मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाए दो वेक्टर उनको ऐड कर लो, द आंसर विल बी द सेम। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। इसका मतलब हम फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, हम फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते। तो जिन वेक्टर्स को ऐड करना है दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर q को वेक्टर p में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमने वेक्टर p में वेक्टर q का नेगेटिव ऐड कर देना है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली है कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। So remember, vector subtraction is not commutative. That is, a minus b is not equal to minus b minus a। ये जो साइन है इसका मतलब है not equal to। Then vector subtraction is not associative. That means a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। ये दोनों प्रॉपर्टीज एडिशन में ठीक हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन में ठीक नहीं है। देन वी हैव लेमेस थ्योरम। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरम? सपोज ए पार्टिकल O is in equilibrium under the action of 3 vectors or forces P, Q and R। Equilibrium means कि इन तीनों का रिजल्टेंट है 0, such that the angle opposite to the vector P is alpha, the angle opposite to the vector Q is beta, and the angle opposite to the vector R is gamma. Then according to the Lemmes theorem, P over sin alpha equal to Q over sin beta equal to R over sin gamma. Now resolution of vectors। जैसे हम, ध्यान से सुनना ये, जैसे हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर ऑब्टेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, और दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक इसका उल्टा प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। उल्टा प्रोसेस मीन्स कि हम एक वेक्टर को स्प्लिट करके उसके दो या दो से ज़्यादा वेक्टर बना सकते हैं। ये जो उल्टा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और एक वेक्टर को स्प्लिट करके
जो उसके दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हम बनाते हैं इन द गिवन डायरेक्शंस, उनको बोलते हैं रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ द गिवन वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट बना सकते हैं, तो आपने कहना है इनफाइनाइट, जितने मर्जी हमारा दिल करे उसके कंपोनेंट बना सकते हैं। अब मान लो हम किसी वेक्टर ए के दो या दो से ज़्यादा, तीन एट द मोस्ट, जिनमें एंगल 90 डिग्री हो। जैसे मान लो मैं वेक्टर ए के दो बनाता हूँ जिनमें एंगल 90 है, से वन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, द अदर वन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उसको मैं डिनोट करता हूँ बाई द वेक्टर ए एक्स, और जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है उसको मैं डिनोट करता हूँ बाई द वेक्टर ए वाई। अब क्योंकि ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और फिर एंगल कितना होगा इनमें 90 डिग्री। इसका मतलब मैंने एक वेक्टर के दो ऑर्थोगोनल वेक्टर बनाए, तो इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। और इसी तरह अगर मैं तीसरा भी बना लूँ अलॉन्ग जेड एक्सिस, उसका नाम मैं ए जेड वेक्टर रख दूँ, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, ये जो तीन वेक्टर हैं they are called rectangular components of the vector A along x axis, y axis and z axis respectively। अब एक चीज़ और सुनो, ये तीन जो हैं वो A के कंपोनेंट हैं, इसका मतलब A इन तीनों का रिजल्टेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर दो वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट R हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इसी तरह ये जो तीन कंपोनेंट हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, क्योंकि इनका रिजल्टेंट है ए वेक्टर, तो आई कैन राइट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, any vector can be written as the product of the magnitude of that vector and a unit vector in the direction of that vector। इसका मतलब जो ए एक्स वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, अब इसमें मैंने एरो नहीं डालना, इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स वेक्टर, और ए एक्स वेक्टर किस तरफ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और उस तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। दैट मीन्स ए एक्स वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स इंटू आई कैप। सिमिलरली a y vector can be written as magnitude of a y into j cap, and a z vector can be written as magnitude of a z into k cap, and the magnitude of the vector a is given by a x square plus a y square plus a z square। अब इसको याद कैसे करना है, a x is coefficient of I cap, a y is coefficient of j cap and a z is coefficient of k cap। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब आ गया पोजीशन वेक्टर। अगर कोई आपके पास पार्टिकल या पॉइंट है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट और ए पार्टिकल, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल और दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर वेक्टर एंड इज गिवन बाई I x cap plus y j cap plus z k cap, and the magnitude of r is given by under root of x square plus y square plus z square। ये वैसे ही है जब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अब मान लो आपके पास किसी पार्टिकल की दो पोजीशंस हैं, एक पोजीशन पे उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1, z1, और थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल दूसरी पोजीशन पे चला गया जिसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2, y2, z2। देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैंने फिर r से डिनोट किया, ऑफ दैट पार्टिकल कैन बी रिटन एज r वेक्टर इक्वल टू x2 वेक्टर माइनस x1 इंटू आई कैप, x2 minus x1 into I cap plus y2 minus 1 into j cap and plus z2 minus z1 into k cap। That is how we can write this. Then direction cosines of a vector, direction cosines of a vector. If a vector makes angles alpha, beta and gamma, please note alpha, beta and gamma are the
angles which a given vector makes with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of that vector, and they are denoted by L, M and N. That means L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. अब मान लो वो वेक्टर A है और उसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड. देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स गिवन बाई ए कॉज अल्फा. तो यहाँ से कॉज अल्फा आ गया ए एक्स ओवर ए. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई इज गिवन बाई ए कॉज बीटा. तो यहाँ से कॉज बीटा आ गया ए वाई ओवर ए. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड इज गिवन बाई ए कॉस गामा, और यहाँ से कॉस गामा आ गया ए जेड ओवर ए. देयरफॉर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, क्योंकि एल क्या है कॉस अल्फा, एम क्या है कॉस बीटा, एन क्या है कॉस गामा. इसलिए एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर मीन्स कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा. और जैसे कि मैंने ऊपर वैल्यूज़ निकाली हैं इनकी, कॉस स्क्वेयर अल्फा आ जाएगा ए एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, कॉस स्क्वेयर बीटा आ जाएगा ए वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, और कॉस स्क्वेयर गामा आ जाएगा ए जेड स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर. अब एलसीएम आ गया ए स्क्वेयर और ऊपर आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर. और आपको भी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर. तो अगर स्क्वेयर रूट साइन हटा देंगे तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर बन गया ए स्क्वेयर, और नीचे ए स्क्वेयर है ही है, तो ये कितना आ गया 1. सो रिमेंबर एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर विच इज ऑफ कोर्स इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा, इट इज इक्वल टू 1. देन वी कम टू एक्सियल वेक्टर्स. सो the vectors which act along the axis of rotation, they are known as axial vectors. These vectors represent rotational effects. For example, angular momentum vector, torque vector, etc. are axial vectors because they act along the axis of rotation of the given body. Then multiplication of vectors. वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये दो तरह का होता है. एक को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट का वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को क्योंकि इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा आंसर आता है वो एक वेक्टर होता है. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली. Now let us come to dot product or scalar product. The dot product of two vectors A and B is denoted by A dot B and is given by AB cos theta, where A is the magnitude of A, B is the magnitude of B, and theta is the smaller angle between A and B, or you can say angle between A and B. Now A is a vector, B is a vector, but AB cos theta is a scalar, and that is why the dot product is also called the scalar product. Now we come to प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि हम ए बी जैसे हैं तो उसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इट इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. सो we say that the dot product is distributed. Then कई बार वो कहता है कि find the angle between two given vectors. तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B, उनमें एंगल है थीटा. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया A डॉट B होगा ए बी कॉस थीटा. देयरफॉर कॉस थीटा क्या आ गया, ये आ गया A डॉट B ओवर ए बी. यहाँ पे A डॉट B मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और A मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. तो अगर हम A डॉट बी निकाल लें, A की मैग्नीट्यूड निकाल लें, B की मैग्नीट्यूड निकाल लें, यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और वहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं. देन
व्हाट आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स? अभी मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, यानी कि उनमें एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी एंड दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यानी कि उनमें एंगल है 90 डिग्री। देन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, एंड व्हाट इज कॉस 90? 0. सो देयरफॉर the dot product of two orthogonal vectors is 0. Then dot product of a vector with the vector itself. मान लो मैं वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तो जैसे ए डॉट ए बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए डॉट ए आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड एंगल बिटवीन ए एंड ए 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री आ गया। Now a into a बन गया a square, cos 0 is 1, therefore it is equal to a square. That means the dot product of a vector with the vector itself is equal to the square of the magnitude of that vector. इसी तरह i dot i equal to j dot j equal to k dot k, ये तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 1। ये न्यूमेरिकल करने में हमारे बहुत काम आता है, सो याद रखना इसको। फिर आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, क्योंकि आई डॉट जे ले लो या जे डॉट के ले लो या के डॉट आई ले लो, दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उनमें एंगल 90 है, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। फिर कई बार हमें जरूरत पड़ती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मान लो ए और बी दो वेक्टर हमारे पास, ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी के हैं बी एक्स बी वाई बी जेड। देन वी कैन प्रूव दैट ए डॉट बी, आपने याद रखना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और इसमें ए एक्स ए वाई ए जेड है, जो वेक्टर ए दे रखा होगा इतने आई कैप इतने जे कैप प्लस माइनस इतने के कैप, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप है वो ए एक्स, जो कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप है वो ए वाई, और जो कोएफिशिएंट ऑफ के कैप है वो ए जेड। इसी तरह वेक्टर बी में मान लो वेक्टर बी लिखा है इतने आई कैप प्लस माइनस इतने जे कैप प्लस माइनस इतने के कैप, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जो इसमें है वो बी एक्स है, जो जे कैप का कोएफिशिएंट है वो बी वाई है, और जो के कैप का कोएफिशिएंट है वो बी जेड है। तो इस तरह भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इसको क्या पढ़ना आपने, ए क्रॉस बी, एंड इट इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाई ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर बिना एरो के का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बिना एरो के बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू बोथ द वेक्टर, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एज वेल एज बी। अब देखिए ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब उसको हम यूनिट वेक्टर एन कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहती है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये एक वेक्टर बन जाता है जिसकी डायरेक्शन एन कैप वाली होती है, और क्योंकि एन कैप ए के परपेंडिकुलर है बी के भी परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये जो टोटल वेक्टर बना ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, it is normal or perpendicular to both the vectors a as well as b। और अगर इसका नाम मैं c वेक्टर रख लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एज वेल एज b। तो कई बार पूछते हैं ऐसे लिख के, वो कहते हैं व्हाट इज एंगल बिटवीन c एंड a या a एंड c, आपने कहना 90 डिग्री। व्हाट इज एंगल बिटवीन b एंड c, आपने कहना 90 डिग्री। लेकिन अगर वो कहता है व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b, आपने कहना इट कैन हैव एनी वैल्यू। Now the direction of vector c can be found by using the right hand rule for the cross product of two vectors, or the right handed screw rule for the cross product of two vectors. Now the magnitude of a cross b is ab sin theta, therefore sin theta आ गया magnitude of a cross b over ab। अब आपने क्या करना है, कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी वेयर ए इज इक्वल टू सो मैनी आई कैप प्लस माइनस सो मैनी जे कैप प्लस माइनस सो मैनी के कैप, एंड सिमिलरली बी वेक्टर इक्वल टू, तो आपने लिखना है साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉड ओवर ए बी। तो आपने पहले निकालना है ए क्रॉस बी, फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेनी है, बी निकाल देनी है, पुट कर देना है, वो साइन ऑफ द एंगल आ जाएगा, और वहाँ से हमें साइन थीटा पता चला तो थीटा भी निकाल सकते हैं। नाउ एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी ओवर ए बी साइन थीटा, ये भी ऊपर जो इक्वेशन मैंने बताई है क्रॉस प्रोडक्ट में उसी से आया,
तो कई बार ये कहते हैं कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको वेक्टर ए दे देगा, वेक्टर बी दे देगा और कहेगा फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू बोथ दीज वेक्टर। तो आपने कहना अगर एन कैप वेक्टर है यूनिट जो कि ए और बी दोनों के नॉर्मल है, देन एन कैप इक्वल ए क्रॉस बी ओवर ए बी साइन थीटा। ऊपर तो ए बी साइन थीटा ही आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, नीचे आया ए बी साइन थीटा, और इसका मतलब मैंने आपको बताया इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेनी है, पुट कर देना है, तो वो आपका यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ द गिवन वेक्टर्स आ जाएगा। अब याद रखना बेटा कि ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड है कि इट कैन बी रिटन एज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब आई जे के कैप दे आर यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये आपको पता ही है ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो आप इसको खोल लो, और खोलने का तरीका है अगर पहली रो से खोलना हमने तो आ जाएगा आई कैप इनटू, ये आपको पता है कि कैसे हम इसको खोलते हैं, तो वो आ जाएगा ए क्रॉस बी, वो आ जाएगा इतने आई कैप इतने जे कैप इतने के कैप, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो अगर ए क्रॉस बी का पता चल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पता चल गया, वी कैन फाइंड व्हाट इज एन कैप। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, रादर ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, हालांकि मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों की, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए क्रॉस बी। तो कई बार कहते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो आपने कहना है 180 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड बराबर है। देन ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसका मतलब ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे एक कि जब आपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है तो आप ऑर्डर जो है वेक्टर्स का वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे ए पहले है, उसके बाद फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यू कैन नॉट राइट इट बी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस ए, दैट इज रॉन्ग। सो प्लीज कीप इन माइंड that the order of the vectors must be maintained properly. Then the cross product of a vector with the vector itself equal to a cross a equal to magnitude of a into sine of the angle between a and a, that is 0 degree, और into n cap। अब साइन 0 होता है 0, तो सारी चीज़ बन गई 0। तो क्योंकि n कैप 0 को मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये 0 वेक्टर आ गया या नल वेक्टर आ गया, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी तो 0 आ गई। इसी तरह आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये भी 0 वेक्टर और इनकी मैग्नीट्यूड 0 के बराबर। अब आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, जैसे जे क्रॉस आई वो आ जाएगा माइनस के क्रॉस जे वो आएगा माइनस आई, और आई क्रॉस के वो आ जाएगा माइनस जे। तो याद रखने का तरीका, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना लिया, और अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लूँ आई क्रॉस जे, तो वो तीसरा वेक्टर के आ जाएगा, जे क्रॉस के वो तीसरा वेक्टर आई आ गया, के क्रॉस आई तीसरा वेक्टर जे आ गया। इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आना। लेकिन अगर क्लॉक वाइज लूँ मैं ऐसे करके, तो फिर तीनों के साथ जो है वो आएगा वही कि 2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो तीसरे वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन अगर क्लॉक वाइज में चलेंगे तो हमें साथ में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। देन मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है विच इज रिप्रेजेंटेड whose two sides are represented by the vectors A and B, then area of that triangle is half magnitude of A cross B। तो आप जैसे मैंने आपको वो बताया कि A क्रॉस B इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई वी जेड, वो निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ गया। अगर पैरेललोग्राम हो कोई जिसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी, देन द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे हाफ नहीं आएगा। हाँ, अगर उसके हमें डायगोनल दे रखे हैं D1 D2, तो उसका जो एरिया दैट इज आल्सो इक्वल टू हाफ
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज A डॉट B क्रॉस C। तो याद रखो, ये हम प्रूव कर सकते हैं, आपने याद रखना है। इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट AX AY AZ BX BY BZ एंड CX CY CZ। अब इसको खोल लो, इस डिटर्मिनेंट को, वो आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C विच इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड रिमेंबर, this scalar triple product represents the volume of a parallelepiped whose edges are represented by the vectors A, B and C। अब कई बार वो कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 3 वेक्टर आपको दे देगा और वो कहेगा कि प्रूव करो कि ये कोप्लेनर हैं। तो उनको कोप्लेनर प्रूव करने के लिए जो उनसे पैरेललोपिपेड बनी उसका वॉल्यूम होना चाहिए 0। दैट मीन्स A डॉट B क्रॉस C शुड बी इक्वल टू 0। और क्योंकि A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू डिटर्मिनेंट AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ, ये निकालो, अगर 0 आ जाए तो वो जो 3 वेक्टर हैं दे आर कोप्लेनर, दैट मीन्स दे लाई इन द सेम प्लेन। और लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, A डॉट A क्रॉस B इक्वल टू, जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से एक ऑप्शन होता है 0, तो ये आंसर 0 आएगा। अब समझो क्यों 0 आएगा। पहले मैं A क्रॉस B निकालूंगा, मान लो वो A क्रॉस B C वेक्टर के बराबर आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो जो C वेक्टर आएगा वो A के परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर, यानी कि A और C में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसलिए इस प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ A डॉट A क्रॉस B की जगह क्या लिख दिया मैंने C। अब बताओ C और A में एंगल कितना है 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। और जब 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। सो रिमेंबर A dot A cross B equal to 0. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.